Hello everyone, welcome to Study Marvels. Today we will see chapter 1 of Hornbill book, The Portrait of a Lady, which is written by Khushwant Singh. The author of this story is Khushwant Singh. In this chapter, Khushwant Singh is explaining his relationship with his grandmother. He tells the character of his grandmother, how she's behaved and how he spent his time with the grandmother when he was a child. Okay, let's see the chapter. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years I had known her. तो यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि my grandmother is just like anybody else's grandmother and she has been old and wrinkled from last 20 years I have seen her. वो लास्ट पिछले 20 साल से उन्हें रिंकल्ड और ओल्ड ही देख रहे हैं अपनी ग्रैंडमदर को, और मेरी ग्रैंडमदर सबकी ग्रैंडमदर जैसी ही है. People said that she had once been young and pretty and even had a husband, but that was hard to believe. तो यहाँ पे कहते हैं कि लोग कहते हैं कि अपने टाइम पे वो प्रिटी और यंग थी और ऑल्सो शी हैड ए हस्बैंड. ऑब्वियसली शी मस्ट बी हैविंग ए हस्बैंड. लेकिन ऑथर कहते हैं कि वो वेरी हार्ड इट इज वेरी हार्ड टू बिलीव दैट शी हैड a husband also, because she is looking very old and he thinks that she is old from many years, like that only. She had never been young. Okay, next. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. तो यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट वॉज हंग इन द ड्रॉइंग रूम अबव द मेंटल पीस. मेंटल पीस क्या होती है? यूजुअली अ नैरो शेल्फ अबव स्पेस इन द लिविंग रूम या फिर ड्रॉइंग रूम में जो स्पेस होती है फायर प्लेस के ऊपर में, यूजुअली शेल्फ टाइप होती है ऑफ वुड, उसके ऊपर में पोर्ट्रेट लगा हुआ था. किसका? ग्रैंडफादर्स ऑफ खुशवंत सिंह. And he is explaining what he was wearing. He was wearing a turban, big turban. Turban means पगड़ी, और लूज फिटिंग क्लोथ्स, लूज कपड़े पहनते थे, वैसा फोटो में है. और ही वॉज हैविंग ए वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. उनके जो दाढ़ी थी वो इतनी लंबी थी कि उनके चेस्ट तक वो आ रही थी, और वो एटलीस्ट 100 years ओल्ड लग रहे थे. वो 100 साल बूढ़े लग रहे थे. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. तो यहाँ खुशवंत सिंह कहते हैं कि उनके ग्रैंडफादर को देख के कोई ये नहीं कह सकता है कि कभी उनकी वाइफ या चिल्ड्रंस भी हो सकते हैं, क्योंकि वो इतने बुजुर्ग, इतने बूढ़े दिख रहे थे कि बस यही कहा जा सकता है कि उनके लॉट्स ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, पोते पोतियां ही होंगे, क्योंकि वो बहुत बूढ़े दिख रहे थे. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. तो यहाँ पे कहते हैं कि सेम वे मेरी ग्रैंडमदर भी कभी यंग या प्रिटी हुआ करी होगी, वो भी बिलीव करना इज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग टाइप है. क्यों ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग मीन्स इट्स हार्ड टू बिलीव दैट वंस माई ग्रैंडमदर यूज टू बी यंग एंड प्रिटी. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव दिस. She also told us of the game she used to play as a child. So the Khushwant Singh's grandmother always tell to Khushwant that she used to play some games when she was a child, but that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophet she used to tell us. तो यहाँ पे खुशवंत सिंह कहते हैं कि वो भी बिलीव करना बहुत ही हार्ड था, एब्सर्ड लगा उन्हें. एब्सर्ड मीन्स इलॉजिकल लगा कि क्या मेरी दादी कभी छोटी हुआ करी होगी और वो गेम्स खेला करती होगी. तो वो फेबल्स मतलब शॉर्ट स्टोरीज. ओके, तो वो एज ए फेबल्स उसे ट्रीट करते थे, मतलब कि लॉजिकल बातें बोल रही है दादी, जैसे कि बाकी कहानियां सुनाती है हमें, वैसे ही ये भी कहानी सुना रही है कि वंस आई वाज यंग एंड व्हेन आई वाज एज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू प्ले दीज गेम्स एंड दैट गेम. सो दिस लाइंस आल्सो for the author it is very hard to believe, and he was not finding it logical in this, because he thinks that his grandmother is always old, because from the last 20 years he has seen the grandmother old and wrinkled. She had always been short and fat and slightly bent. Here the Khushwant Singh is explaining the character sketch of his grandmother.
How she looks? She was short and fat and slightly bent. वो थोड़ी झुक के चलती थी, short थी और fat थी. Okay. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनके face पे crisscross जैसे wrinkles थे, झुर्रियाँ थे और वो everywhere to everywhere मतलब जहाँ भी देखो उनके face पे wrinkles ही wrinkles थे. No, we were certain she had always been as we had known her. तो वो कहते हैं कि आई एम सर्टन नाउ कि वो जैसी दिख रही है वैसी ही हमेशा से दिखी होगी. शी यूज्ड टू नेवर बी अ यंग गर्ल. मैं कभी बिलीव ही नहीं कर सकती वो कभी यंग भी होगी, बिकॉज शी हैज बीन ओल्ड फ्रॉम लास्ट 20 years और इसलिए वो कभी यंग होगी ये बिलीव करना वाज डिफिकल्ट फॉर द ऑथर. Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. तो यहाँ पे कहते हैं कि old, so terribly old that she could not even grow more longer than that. मतलब उससे ज़्यादा old वो हो ही नहीं सकती है क्योंकि वो terribly old, already terribly old है और same age में last 20 years से है. She could never have been pretty, but she was always beautiful. Here the author is saying she could never have been pretty. Pretty means she was never beautiful by the face. Pretty मतलब आप उतने सुंदर नहीं हो, लेकिन beautiful means from the inner soul, your spirit is beautiful. आप खूबसूरत हो. तो वो अपनी ग्रैंडमदर के बारे में कह रहे हैं कि वो कभी सुंदर नहीं रही होगी क्योंकि मैंने तो उसे पिछले 20 साल से ओल्ड ही देखा है, लेकिन वो खूबसूरत बहुत है क्योंकि उनकी स्पिरिट, उनकी कैरेक्टर, उनके नेचर बहुत ही ब्यूटीफुल है. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. तो कहते वो कैसे चलते थे? हॉबल्ड मीन्स थोड़ा झुक के चलना और एक हाथ उनका एक कमर पे होता था बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वो बूढ़ी इतनी थी कि उन्हें झुक कर चलना पड़ता था, तो सपोर्ट के लिए दूसरे हाथ को अपने कमर पे रखती थी और दूसरे हाथ में रोजरी रहते थे. रोजरी बीड्स वो रोजरी के होते जैसे कि रुद्राक्ष की माला पहले हमारी दादी नानियाँ उसमें मंत्र पढ़ा करते थे, जाप किया करते थे, वैसे ही वन हैंड शी वॉज taking the beads, she was reading all the time मंत्र और एक हाथ उनके कमर पे हुआ करता था जिसको वो बैलेंस करके पूरे घर में घूमती थी. and she was wearing spotless white साड़ी. spotless means कहीं भी एक स्पॉट नहीं होता था, कहीं भी एक दाग नहीं मिलता था उनकी साड़ी पे. स्पॉटलेस व्हाइट साड़ी वो पहना करती थी. Her silver locks were scattered untidily over her pale, pugged face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. Here the author is explaining the appearance of his grandmother. He is saying that her silver locks were scattered and untidily over the pale and pugged face. Pugged and pale means yellowish, pugged means full of wrinkles on her face. तो उनका face क्योंकि वो old थी तो old लोग के face पे थोड़ी येलोइश हो जाते हैं, हल्का पीलापन रहता है, और पग्ड फुल ऑफ रिंकल्स थे उनके फेस. और सिल्वर लॉक्स को यहाँ पे व्हाइट हेयर से कंपेयर किया गया है. हर व्हाइट हेयर्स लुक्स लाइक सिल्वर लॉक्स ओवर हर फेस विच वाज अनटाइटली. वो बिखरे हुए रहते थे बाल, वो क्योंकि अच्छे से संवार के नहीं रखती थी. और कहा है और ऑथर इज सेइंग दैट शी वाज constantly her lips were constantly moving in inaudible prayers, जो कि सुनाई नहीं देता था लेकिन उनके lips move करते थे, मंत्र का जाप करती रहती थी वो all the times. Okay. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountain, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. So here the author is saying, yes, she was really beautiful as she was very pure from the inside and her soul was really pure. She was all the time reading the prayers and she was walking in the house wearing a white dress, white sari. And here the author has explained her grandmother with the landscape, winter landscape. Why winter landscape? Because in the winter as snow falls appear on the mountains and it looks white and pure everywhere, the same way his grandmother is also looking. An expanse of pure white serenity means वो बहुत ही calm रहती थी, and breathing peace and contentment, satisfied, or she was satisfied and she was full of happiness. There was nothing that she was unhappy about. She was very much satisfied with the thing she was with and with the people she was living with.
My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city, and we were constantly together. Here, the author is explaining that my grandmother was his good friend because the author's parents have left him with the grandmother in the village, and they have went to live in the city. So they were constantly living together. The author was living with the grandmother, so the bonding is strong with the grandmother. She used to wake me up in the morning and get ready for school. She said her morning prayers in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. So here the author is saying that his grandmother used to wake him up and make him ready for the school, and while she was doing all these things, जब वो उसे ready करवाती थी author को, उसे उठाती थी morning में, and she used to sing her मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटनस वे। मोनोटनस मतलब बहुत ही वही डल सा बोरिंग सा, रोज का यही था उनका कि रोज रोज वो मंत्र पढ़ते पढ़ते उस ऑथर को तैयार करती थी, उसे नहलाती थी, तैयार करवाती थी। वो इसलिए ये करती थी क्योंकि उन्हें वो एक्सपेक्टेशंस था कि उसे बाय हार्ट हो जाएगा, ऑथर बाय हार्ट कर लेंगे ये सारे प्रेयर्स को। I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. Here the author is saying कि मैं इसलिए सुनता था क्योंकि मुझे उनकी वॉइस पसंद थी, उनकी आवाज अच्छी लगती थी, और इसलिए नहीं कि मुझे, और मैंने कभी ये बॉदर भी नहीं किया कि मुझे इसे लर्न करना है। Then she would fetch me wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. फिर वो क्या करती थी, उनको एक वुडन स्लेट देती थी। पुराने जमाने में क्या होता था, यू डोंट टेक द बुक्स और द कॉपी विथ यू, बट यू टेक अ स्लेट। स्लेट मिनी ब्लैक बोर्ड जैसा होता है जो A4 साइज का होता है, उसे वो दे देती थी, उनसे वो अच्छे से धोकर साफ करके दे देती थी व्हाइट येलो चॉक के साथ, और उसके साथ एक अर्दन इंक पॉट देती थी। अर्दन मीन्स मिट्टी का इंक पॉट देती थी विथ अ रेड पेन, और उन सबको एक बंडल बना के ऑथर को उसकी दादी उसको दे देती थी। After breakfast of thick, stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि ब्रेकफास्ट के बाद वो लोग स्कूल के लिए निकल जाते थे, और उन्हें ब्रेकफास्ट में क्या मिलता था, थिक स्टेल चपाती। स्टेल चपाती मीन्स एक दिन की बनी हुई चपाती, बासी चपाती रोटी, उन्हें उस पे बटर और शुगर स्प्रेड करके उसको उसकी दादी उसे दे देती थी खाने के लिए, और अपने साथ वो बहुत सारे चपाती साथ में लेके जाती थी ताकि विलेज डॉग्स को वो फीड कर सके। My grandmother always went to school with me because the school was attached to a temple. उनकी ग्रैंडमदर उनके साथ हमेशा स्कूल जाया करती थी। क्यों जाया करती थी? क्योंकि स्कूल से अटैच्ड एक टेम्पल हुआ करता था और उनको मंदिर जाना, मंत्र पढ़ना, भजन करना अच्छा लगता था, इसीलिए वो ऑथर के साथ स्कूल जाया करती थी। The priest taught us the alphabet and the morning prayer. तो प्रिस्ट वहाँ के पंडित उन्हें क्या सिखाते थे? अल्फाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर सिखाया करते थे। While the children sat on the rows of either side of the veranda singing the alphabet or the prayers in the chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. तो जब बच्चे बाहर बरांडा में रो बना के बैठा करते थे और अल्फाबेट्स और प्रेयर्स अपने गा रहे होते हैं, तब तक उनकी ग्रैंडमदर क्या करती है, वो अंदर जाके मंदिर में स्क्रिप्चर्स पढ़ती हैं। स्क्रिप्चर्स बुक रिलेटेड टू रिलीजन और ट्रेडिशनल बुक्स, वो सारे भगवान की किताबें पढ़ा करती थी। When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. तो जब हम खत्म कर लेते थे अपना ये भजन और ये प्रेयर्स पढ़ना, तो हम दोनों घर की तरफ चलते थे, तो हमें मंदिर के दरवाजे पे कौन मिलता था? हमें विलेज डॉग्स मिलते थे। They follow us to home, growling and fighting with each other for the chapati we threw to them. तो क्या करते थे, वहाँ के जो विलेज डॉग्स थे जो मंदिर के द्वार पे उन्हें मिल जाते थे, तो वो लोग वो सारे डॉग्स खुशवंत सिंह को और उनकी दादी को घर तक फॉलो करते हुए जाते थे। क्यों करते हुए जाते थे? क्योंकि उनके हाथ में वो स्टेल चपाती देखते थे और वो चपाती दादी उनको फीड करती हुई जाती थी, और उस चपाती के लिए दे यूज्ड टू फाइट विथ ईच अदर, द डॉग्स यूज्ड टू फाइट विथ ईच अदर फॉर द सिंगल बाइट ऑफ द chapati.
When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was the turning point in our friendship. तो वो क्या कहते हैं कि when my parents settled comfortably in the city, जब मेरे पेरेंट्स सेटल्ड हो गए अच्छी तरीके से सिटी में, तो वो हमें अपने पास बुलाने के लिए एक संदेश भेजते हैं कि that was the turning point in the friendship of grandmother and the grandson. वो कहते हैं कि यही एक टर्निंग पॉइंट है हमारी फ्रेंडशिप का. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the country yard of our city house. Here, the author is saying that as we were sharing the rooms, but then also they were not talking that much with each other. Grandmother and the grandson, the bonding was not like before, as they were living in the village. And grandmother never used to go to his school because now the author is going in an English school and by the bus, so the grandmother never go with him. And in the city there were no dogs in the streets to feed, so she opted a second option, the sparrows which were coming in the country yard of this house. सिटी में जो उनका घर था उसके बरांडा में जो भी स्पैरोज आते थे, कबूतर आते थे, उसे वो फीड करने लगी. As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning. तो वो कहते हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे ईयर्स पास होते गए हम एक दूसरे से कम मिलने लगे, हम एक दूसरे से कम बातें करने लगे. फॉर द सम टाइम्स, कुछ सालों तक, कुछ समय तक वो कंटिन्यूसली मुझे सुबह उठाया करती थी, मुझे स्कूल के लिए रेडी किया करती थी, और जब मैं स्कूल से वापस घर आता था तो वो मुझसे पूछा करती थी कि तुमने आज क्या पढ़ाई किया, तुम स्कूल में क्या पढ़े. तो जब भी मैं उन्हें बताता था कि मैं आज स्कूल में इंग्लिश वर्ड सीखा, साइंस के बारे में सीखा, वेस्टर्न कल्चर सीखा, तो उनको थोड़ी सी अनहैप्पी हो जाती थी, क्योंकि वो विलेज में वो चाहती थी कि मेरे पोते को अच्छी कल्चर, ट्रेडिशनल स्क्रिप्चर्स के बारे में सिखाया जाए, लेकिन जो शहर में नहीं हो रहा था. और शी नेवर यूज्ड टू अंडरस्टैंड आल्सो व्हाटएवर ही वाज स्टडीइंग इन द स्कूल. This made her unhappy. She could not help me with the lessons. She did not believe the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about the God and scriptures. तो वो कहते हैं कि उनको इस बात को सुन के उन्हें बहुत ही दुखी हुआ, वो थोड़ी सी सैड हो गई कि हमारे इंग्लिश स्कूल में ये सब क्या पढ़ा रहे हैं और हमें गॉड या स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाते ही नहीं है. उन्हें ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्यों ऐसा है कि इंग्लिश स्कूल में ये सब सारी चीज़ें नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अब उसे खुशवंत सिंह को उसकी दादी अब उनके लेसन्स में हेल्प नहीं कर सकती है, क्योंकि वो इंग्लिश टर्म्स, इंग्लिश लेसन्स नहीं समझ पाती थी. One day, I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had lewd associations. It was the monopoly of harlot and beggars and not meant for gentlefolk. Here the author is saying one day when he announced to his grandmother that they are being given the music lessons in the school, she was very disturbed about it, because she thought that music is not for the respectful people. It is not good. This is not dignified thing. And only music and dance is only meant for the harlots and beggars, for lower association peoples. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. So here the author is saying, after listening to that I have been giving the music lessons in the school, after that she said nothing. उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस वो साइलेंट थी और उनके साइलेंस से लग रहा था कि वो इस चीज़ को डिसअप्रूव कर रही है. आफ्टर दैट वो लोग उतना बात ही नहीं करते थे आपस में, ऑथर एंड द ग्रैंडमदर. When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. तो here the author is saying कि when he went up to the university, जब वो कॉलेज लेवल पे पढ़ने गए, तो उनको अब एक सेपरेट रूम दिया गया और दादी का एक सेपरेट रूम हो गया था. और यहाँ वो कह रहे हैं कि कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप भी स्नैप्ड हो गया, मतलब वो खत्म हो गया. जो कॉमन लिंक था, एक रूम था जो दोनों शेयर करते थे आपस में, वो भी when he went to the university, that was also over.
My grandmother accepted her seclusion with resignation. So here author is saying my grandmother accepted this seclusion. Seclusion means keeping herself privately without talking to anybody. She was being alone. वो हमेशा अकेला अकेला रहने लगी और किसी से उतना बातें नहीं करती थी. With resignation, she has accepted her seclusion with resignation means without any objection. She accepted this phase also. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. स्पाइनिंग व्हील मीन्स चरखा. वो उससे छोड़ती ही नहीं थी और किसी से उतना बात ही नहीं करती थी. ऑल द टाइम शी वॉज सिटिंग नियर द स्पाइनिंग व्हील एंड शी वॉज डूइंग समथिंग. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट she sat by her wheel spinning and reciting prayers. सुबह से लेके शाम तक वो स्पाइनिंग व्हील पर ही काम किया करती थी और अपने प्रेयर्स को रिसाइट करती रहती थी. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. So here, author is saying only in the afternoon she used to relax. सिर्फ वो दोपहर में ही थोड़ा सा रिलैक्स करती थी, आराम करती थी. वो भी इसलिए ताकि वो स्पैरोज को फीड कर सके. हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज वरांडा में आ जाते थे और जब वो ब्रेड के टुकड़ों को तोड़ कर देती थी तो बहुत सारे कबूतर उनको घेर के बैठ जाते थे और चर्पिंग साउंड निकालते थे. वेरिटेबल बेडलाम ऑफ चर्पिंग मीन्स जो साउंड चिड़िया या कोई पक्षी निकालते हैं चू चू की आवाज, उसे ही यहाँ पे रेफर किया गया है बेडलाम ऑफ चर्पिंग्स. Some came and perched on her legs, others on her shoulders, some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. Okay, here the author is saying some sparrows would come and sat on her shoulders and perched her legs. उनके पैर के पास उनके शोल्डर पे आके बैठ जाते थे, उनके हेड पे आके बैठ जाते थे. लेकिन फिर भी वो स्माइल करती थी, लेकिन कभी भी उसे शूट मतलब उसे कभी भी हटाती नहीं थी, उड़ाने की कोशिश नहीं करती थी. और वो हाफ एन आवर उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था पूरे दिन का, जो वो हाफ एन आवर उन स्पैरोज के साथ वो स्पेंड करती थी. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away from 5 years, and at her age one could never tell. But my grandmother could. Here the author is saying that now I have finished as my university also, so he decided to go abroad for the further studies. इंडिया के बाहर, abroad means इंडिया के बाहर कोई भी कंट्री में वो जाके अपनी पढ़ाई करने वाले थे, वो भी कितने सालों के लिए, 5 साल के लिए. तो ये उन्हें पता था कि जब ये बात उनकी ग्रैंडमदर को पता चलेगा तो डेफिनेटली शी विल बी अपसेट. एंड वन कुड नेवर टेल मीन्स यहाँ पे वन कुड नेवर से, यहाँ पे मतलब ये है कि उनकी एज में कोई कह नहीं सकता कि 5 साल बाद में जब वापस आऊँगा तो वो मुझे मिलेंगी भी या नहीं. मे बी दिस इज द लास्ट मीटिंग विच आई एम मीटिंग विद हर. वो कहते हैं लेकिन बट वो कहते हैं कि बट माई ग्रैंड मदर कुड. क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि वो लास्ट 20 ईयर से कितने साल से उनको सेम एज में देख रहे हैं. तो डेफिनेटली आफ्टर 5 years ऑल्सो माई ग्रैंड मदर विल बी देयर वेटिंग फॉर मी. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. वो कहते हैं कि वो सेंटिमेंटल भी नहीं हुई, वो भावुक भी नहीं हुई जब वो मुझे स्टेशन छोड़ने भी आई. तो ये बात जानने के बाद भी कि मैं 5 साल के लिए बाहर जा रहा हूँ अब्रॉड पढ़ने के लिए, वो फिर भी सेंटिमेंटल नहीं हुई, भावुक नहीं हुई. इंस्टेड शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन. और वो कुछ बात नहीं कर रही थी, वो अपना इमोशन दिखाना ही नहीं चाह रही थी. Her lips moved in prayers. Her mind was lost in prayers. Her fingers were busy telling the beads of rosary. ठीक है, तो वो कहते हैं कि उनके लिप्स कंटिन्यूसली प्रेयर्स पढ़ रहे थे, मंत्र जाप कर रही थी और उनका माइंड भी somewhere it was lost in the prayer only. The mind was lost in the prayer and she was busy. Her fingers were busy telling the beads, reading the beads. वो beads को, माला को जपने में ही उनकी फिंगर बिजी थे. Silently she kissed my forehead and when I left cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. फिर ये कहते हैं कि साइलेंटली उन्होंने मेरी फोरहेड पे किस किया और मुझे पता है कि दिस वाज द लास्ट इम्प्रिंट, दिस इज द फिजिकल टच बिटवीन अस, दिस विल बी द लास्ट बिकॉज मे बी आफ्टर 5 years when I will return, I don't know whether my grandmother will be there or not.
So by reading this para, we can say that grandmother was really strong and she was not that much emotional kind of lady. See, as the author, जब author और grandmother का room भी separate हुआ, तब भी वो उतनी emotional नहीं हुई. उस चीज को, उस fact को उन्होंने accept किया कि ठीक है, अब my grandson is being elder, so he should stay alone in the different room or I should stay alone in the different room. प्लस जब उन्होंने बताया कि मैं 5 साल के लिए इंडिया से बाहर जा रहा हूँ, तब भी वो उतनी सेंटिमेंटल नहीं हुई, जिससे ये पता चलता है कि वो कितनी इमोशनली स्ट्रांग थी. ओके, तो लास्ट लाइन में हमने देखा कि जैसा खुशवंत सिंह को लग रहा था कि मे बी दिस विल बी द लास्ट फिजिकल टच बिटवीन द ग्रैंड मदर एंड हिम, क्योंकि वो सोच रहे थे कि मे बी व्हेन आई विल रिटर्न आफ्टर 5 years मुझे अपनी दादी से मिलने का मौका मिलेगा भी या नहीं, वो जिंदा रहेंगी भी कि नहीं, वो ऐसा सोच रहे थे. लेकिन ऐसा नहीं होता है. बट that was not so. After 5 years, I came back home and I was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. So here Khushwant Singh is saying that when I returned back after 5 years, she came to receive me in the station. स्टेशन पर वो आई मुझे लेने के लिए, और वो एक दिन भी ओल्डर नहीं लग रही थी. वो एग्जैक्टली जैसे 5 साल पहले दिख रही थी, वैसे ही 5 साल बाद भी वो सेम दिख रही थी. और जब उन्होंने मुझे टाइटली होल्ड किया, मुझे यहाँ पे द क्लैप्स्ड इन हर आर्म्स, मतलब वही है कि किसी को टाइटली होल्ड करना. मतलब उन्होंने जब मुझे हग किया तो मैं क्लियरली उनके प्रेयर्स को सुन सक रहा था. उनके पास अभी भी टाइम नहीं था किसी वर्ड्स के लिए, कुछ बोलने के लिए टाइम नहीं था, बस वो अपने प्रेयर्स को ही रिसाइट कर रही थी. Okay, even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with fabulous rewards. तो यहाँ वो कह रहे हैं कि इवन जब मैं वहाँ आया, 5 साल के बाद लौटा, फिर भी उनका हैप्पीएस्ट मूवमेंट मेरे साथ नहीं था. उनका हैप्पीएस्ट मूवमेंट विद द स्पैरोज ही था, जब वो स्पैरोज को फीड करती थी. और वो फेबुलस रिवॉर्ड्स मतलब लाइट हार्टेडली किसी को डांटना हो, मतलब वो गुस्से में नहीं डांट रही थी, यूं ही मजाक मजाक में स्पैरोज को डांट रही थी जब वो स्पैरोज उनके कंधे पे या सर पे आके बैठ जाते थे. तो In the evening, a change came over her. She did not pray. She collected the women of neighborhood, got an old drum and started to sing. तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ था इन द इवनिंग, अ चेंज केम ओवर हर, उनके बिहेवियर में एक चेंज आया कि उस दिन उन्होंने प्रे नहीं किया. उसने क्या किया, बस आसपास की लेडीज को कलेक्ट करके, वुमेन को, नेबरहुड की वुमेन को कलेक्ट करके और एक ओल्ड ड्रम लेके बस वो गाना बजाना स्टार्ट कर दी. एक ओल्ड ड्रम को बजा रही थी और गा रही थी. For several hours, he thumped the sagging skins of dilapidated drum and sang of homecoming warriors. ठीक है, तो यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि फॉर द सेवरल आवर्स ही वाज कंटिन्यूअसली बीटिंग द डायलापिलेटेड ड्रम. डायलापिलेटेड ड्रम मतलब जो ड्रम बुरी हालत में है, एंड सैगिंग स्किन मतलब उसके स्किन ऊपर का ड्रम का हिस्सा वो थोड़ा सा टोन आउट हो गया है, सैग कर रहा है, और उस पूरे कंडीशन वाले ड्रम को कंटिन्यूअसली बजा रही थी. और गाना कौन सा गा रही थी, होम कमिंग वॉरियर्स का. जब पुराने जमाने में क्या होता था कि जब भी कोई जंग से लौट कर हमारे घर वापस आते थे कोई योद्धा, तो वहाँ की लेडीज उनके लिए सॉन्ग गाया करती थी. तो सेम वे grandmother is also singing a homecoming warrior song because her grandson has returned after 5 years to home. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. Here the author is saying we have to persuade her. Persuade mean मनाना पड़ रहा था उन्हें कि आप अब स्टॉप करो, आप रुक जाओ, आप कंटिन्यूअसली तब से ड्रम बजा रहे हो और गाना गा रहे हो, आप थक जाओगे. ओवर स्ट्रेनिंग मीन्स ओवर स्ट्रेन हो जाएगी वो पूरी तरह से, टोटली शी विल बी टायर्ड. तो और फिर वो कहते हैं कि दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव सीन हर, शी हैज नॉट डन एनी प्रेयर्स टुडे. बिकॉज जब से उन्हें वो जानते हैं अपनी ग्रैंड मदर को, ही हैज नेवर सीन हर विदाउट अ प्रेयर. लेकिन आज ही ऐसा दिन था जो उसकी दादी ने प्रेयर नहीं किया और शी वॉज कंटिन्यूसली सिंगिंग अ सॉन्ग ऑफ होम कमिंग वॉरियर्स. The next morning she was taken ill. It was mild fever, the doctor told us that it would go. But my grandmother thought it differently.
She told us that her end was near. तो यहाँ पे कहते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग में वो बीमार हो गई, जैसा कि वो हमें डर ही लग रहा था, क्योंकि वो कंटिन्यूसली शी वॉज प्लेइंग द ड्रम एंड सिंगिंग द सॉन्ग. सो शी गॉट इल नेक्स्ट मॉर्निंग, बट द डॉक्टर सेड दिस इज अ माइल्ड फीवर, वो चला जाएगा, माइल्ड फीवर है. लेकिन उसकी दादी डिफरेंटली सोच रही थी. उन्होंने कहा कि दिस इज हर एंड. वो कह रही कि मेरा अंत समय करीब आ गया है और मैं अब नहीं बचने वाली हूँ. Okay. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. वो कहती है कि since ये लास्ट चैप्टर है उनकी लाइफ का, अब वो खत्म ही होने वाला है उनका लाइफ, तो मैं किसी से बात करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी. मैं अब डायरेक्टली प्रेयर्स ही अपना करती रहूंगी कंटिन्यूसली. मुझे किसी से बात करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है. We protested, but she ignored our protest. She lay peacefully in bed praying and telling her beads. तो यहाँ पे खुशवंत कहते हैं कि हमने प्रोटेस्ट किया, हमने ऑब्जेक्ट किया इस बात को, जब उन्होंने कहा कि मैं कंटिन्यूसली प्रेयर ही करना चाहती हूँ, किसी से बात नहीं करना चाहती हूँ, तो हमने इस बात पे ऑब्जेक्शन डाला. लेकिन शी इग्नोर्ड दैट एंड शी लेड पीसफुली इन द बेड. वो बेड पे शांति से लेट गई और अपने बीड्स को पढ़ने लग गई, अपने माला को. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, her lips stopped moving and rosary fell from her lifeless fingers. तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि बिफोर हम सस्पेक्ट करते हैं, हमको सस्पेक्ट करते हैं, उससे पहले ही उनकी लिप्स स्टॉप्ड हो गई और उनके हाथ से लाइफलेस फिंगर से, मतलब वो लाइफ रहा नहीं उनकी बॉडी में, तो लाइफलेस फिंगर से उनकी रोजरी गिर गई. अ पीसफुल पालर स्प्रेड on her face and we knew she was dead. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. तो पीसफुल पालर मीन्स ये कि उनके फेस पे एक पेल अपीयरेंस, एक डल अपीयरेंस आ गया, एंड वी न्यू दैट शी इज नो मोर नाउ, शी इज डेड नाउ. सो वी लिफ्टेड हर ऑफ बेड एंड इज अ कस्टमरली लेड ऑन हर ग्राउंड एंड कवर्ड हर विथ अ रेड शाउट. फिर वो कहते हैं कि उन्हें एज ए कस्टमरी वो था कि उनकी बॉडी को हमने बेड से उठाया और उन्हें एक रेड शाउट से लपेट दिया. रेड शाउट मतलब एक रेड कलर का क्लॉथ जो बॉडी को आफ्टर द डेथ द बॉडी इज बीइंग covered with that, तो उससे उन्हें हमें लपेट दिया. So after a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. तो कुछ देर मॉर्निंग के बाद, शोक मनाने के बाद, हमने उन्हें छोड़ दिया फ्यूनरल की तैयारी करने के लिए. अब उनकी बॉडी को बर्न करने के लिए लेके जाएंगे उसके लिए. So in the evening we went to her room with a crude stretcher to take her to the cremated. फिर शाम में हम एक स्ट्रेचर लेके गए जिस पे उनकी बॉडी को लिफ्ट किया जाएगा और क्रीमेटेड के लिए लेके जाएंगे. क्रीमेटेड मीन्स टू डिस्पोज द बॉडी, मतलब उनको जलाने के लिए लेके जाएंगे. ओके. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. तो वो कह रहे हैं कि सूरज ढलने ही वाला था, उस शाम का टाइम था, और when the sun was setting, her room and veranda was full of golden blaze color light. golden color की लाइट से सनलाइट ऐसी आ रही थी जिससे पूरा रूम और वरांडा कैसा दिख रहा था, गोल्डन कलर का. Okay, we stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. तो वो थोड़ी देर के लिए वरांडा में रुकते हैं, तो वो देखते हैं कि रूम में और वरांडा में थाउजेंड ऑफ स्पैरोज आ गए हैं. जहाँ पे उनकी बॉडी रखी हुई है वहाँ पे भी बहुत सारे स्पैरोज, बहुत सारे कबूतर उनके आसपास आ गए हैं. There was no chirping. We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. She broke it into little crumbs the way my grandmother used to do. And she threw it to them. The sparrows took no notice of the bread. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. Next morning, the sweeper swept bread crumbs into the dustbin. यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि लेकिन इस बार स्पैरोज आए तो थे, लेकिन देर वे नॉट मेकिंग एनी नॉइज. वो बहुत शांत से थे, चुपचाप बैठे हुए थे दादी की बॉडी के आसपास, क्योंकि उन्हें पता था कि आज दादी नहीं है उन्हें फीड करने के लिए. शी इज नो मोर नाउ. बट खुशवंत सिंह की मदर ने, जैसे कि दादी ब्रेड क्रम्स को तोड़कर उन्हें स्पैरोज को फीड करने के लिए ब्रेड फेंकती थी, वैसे ही खुशवंत सिंह की मदर ने भी किया, लेकिन स्पैरोज ने उसे नोटिस ही नहीं किया, उनसे ध्यान ही नहीं दिया, इग्नोर किया. और जैसे ही हम दादी की बॉडी को ले जा रहे थे, तो उसके बाद जैसे दादी की बॉडी चली गई
तो स्पैरोज भी चले गए, क्वाइटली सारे उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग स्वीपर ने सारे ब्रेड क्रम्स को डस्टबिन में फिर स्वीप करके हटा दिया। So this was all about the first chapter, The Portrait of the Lady. I hope you understood the chapter. If you have any doubt, you can comment down and I will respond it positively.